Greetings to all the aspirants present out there. This is Chandigarh Civil Services, and today's topic for discussion is Australia. But before we proceed further and look into the deep analysis of the Australia, there are certain indubitable do's and don'ts which you all need to keep in mind. First, you must be ready with your Oxford Atlas. If right now you're not having, then at least with a blank page. Second, whatever the pictorial representation we will be plotting here, you have to practice it again and again. So practice is the only mantra in order to comprehend or vomit out all the things during examination, during your examination. Right? So let's type on the today's session. That is your Australia. Okay, so whenever we look into the world map, Australia कुछ हमें इस तरह से दिखता है, right? This is the whole world map. जब हम पूरे world map को देखते हैं, तो Australia is somewhere here. Fine. तो जब भी हम as a Australia की बात करते हैं, you must have heard some word that is your Oceania. Word is mostly जो composed है, that is not only to include Australia as a country, but also it include your New Zealand. There is some small islands from like your Micronesia, Polynesia, and etc. But in this session, we will particularly talk about your Australia part. Australia, which is also a country. तो आपका जो Australia में होगा, Australia as a continent, उसमें जो small islands हैं, we are excluding that part. We have specifically targeted your Australia as a country. Okay. तो देखिए, जब भी हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, somewhere it look like this. Okay. तो देखिए, लर्न करने का तरीका कैसे है? जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का डाइसेक्शन करते हैं, it's very important to move in a very structured manner. So next step in order to learn the things is move in a very structured manner. कैसे मूव करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लुक इनटू द इट्स फिजियोग्राफिक पार्ट. फिजियोग्राफी में आपका क्या क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको क्या देखना है? जैसे हमने डेजर्ट देख लिया, आफ्टर दैट माउंटेन्स, आफ्टर दैट रिवर्स, फाइन, देन ग्रासलैंड्स, ओके, फाइन, एंड देन पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे क्या है? डेजर्ट्स आ गए, माउंटेन्स, रिवर्स एंड ग्रासलैंड्स. Broadly we will look into these perspective. देखिए, अगर आप एटलस में पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को स्टडी कर रहे हैं और आप कुछ पार्ट डेजर्ट का देख रहे हैं, रिवर्स का देख रहे हैं, then it will be a quite mind boggling for you and you will not be able to move in a very structured manner. So very important, psychological engineering is very important. पहले आप डेजर्ट देखिए, माउंटेन्स देखिए, use different highlighters so that you will be able to distinguish कि अच्छा ये डेजर्ट वाला पार्ट है, ये माउंटेन्स वाला पार्ट है, ये रिवर्स वाला पार्ट है. So that जब भी आप उसको फिर से रिवाइज करें तो एक पिक्टोरियल और एक माइंड मैप बन गया हो. So वही एक आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो देखिए, ऑस्ट्रेलिया को स्टडी करने के लिए ऑलवेज ट्राई कि एक रफली सा प्लॉट कर लीजिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर, ताकि आप जल्दी से लर्न कर सकें. फाइन. तो जैसे यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया को देखती हूँ, समवेयर इट विल लुक लाइक दिस. दिस इज योर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दिस इज योर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, दिस इज योर सदर्न ऑस्ट्रेलिया. ओके, देन यहाँ पे क्या है? दिस इज योर क्वींसलैंड. रफली प्लॉट करना है सो दैट यू विल बी एबल टू, कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप क्या है उसको लर्न कर पाओगे. देन दिस इज योर न्यू साउथ वेल्स इज देयर, न्यू साउथ वेल्स इज देयर, एंड देन योर विक्टोरिया इज देयर. ओके, ये तो हमें थोड़ा बहुत पता चल गया कि हाउ इट लुक्स. देन यहाँ पे आपका क्या है? दिस इज योर तस्मानिया. Okay, fine. So Australia is mostly composed of the 6 states. Okay, यहाँ पे आपका क्या है? This is your capital, this is your Perth. यहाँ पे आपका capital क्या है? That is your Darwin, which is called as Australia's front shore. इसी तरह से आपको proceed करना है. Fine. And then यहाँ पे आपकी capital क्या आ जाएगी? Adelaide is there. Okay, Adelaide is there. Then Queensland की capital जो आ जाएगी somewhere, that will be your Brisbane is there. Brisbane is there. Fine. New South Wales की जो capital आ जाएगी, that is your Sydney is there. Sydney is there, and Victoria की क्या आ जाएगी आपकी? Melbourne is there. Okay, इसी साइकिल को keep on repeating, practice कीजिए, you will be able to store the things with a passage of time. Okay, और ऑस्ट्रेलिया as a continent अगर बात करें तो इसकी जो कैपिटल रहेगी that will be a Canberra.
ठीक है, ये तो इंडिविजुअल स्टेट्स की कैपिटल है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोलूं हिमाचल की कैपिटल इज योर शिमला, तो वैसे ही आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज योर पर्थ, फाइन। यहाँ पे इसकी कैपिटल तस्मानिया इज योर होबार्ट इज देयर, फाइन। सो इस पर्टिकुलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को आपको क्या है, बार बार रिपीटेडली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके ओके, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का पार्ट जो है, फाइन, हमने डिस्कस किया, दिस इज हाउ इट लुक लाइक। ओके ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, फिजियोग्राफी का देखते हैं, फर्स्ट एस्पेक्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें एक टिम्बरवुल्फ प्लेट्यू दिख रहा है, फाइन। देन योर बार्कलेट टेबललैंड इज देयर, ओके। देन ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज देयर, गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज देयर, देन आपका तनामी डेजर्ट इज देयर, देन सिम्पसन डेजर्ट इज देयर, ओके। और आपका अगर यहाँ पे देखेंगे एक पर्टिकुलर ऐसा करके पॉइंटेड सा है, दिस इज योर केप ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला जब भी वर्ड आता है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर लैंड मास जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, फाइन। तो दिस इज योर केप ऑफ पेनिनसुला। जब भी आपका वर्ड आएगा केप ऑफ पेनिनसुला, दिस हैज अ रिलेशन विद द ऑस्ट्रेलिया, ओके। देन कम्स टू योर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पे, फाइन। आपके केप ऑफ पेनिनसुला से लेके आपकी तस्मानिया तक जाती है, फाइन। सो दिस इज द ब्रॉडली, अगर मैं बोलूं तो दिस इज द फिजियोग्राफी ऑफ इट, ओके। सो लेट्स एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका डेजर्ट, ओके। सो डेजर्ट को लर्न करने का तरीका कैसे है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में जब भी आपका डेजर्ट आएंगे तो आपका यहाँ पे दिस इज योर ग्रेट सैंडी डेजर्ट आ गया, ग्रेट आपका क्या आ गया, सैंडी डेजर्ट आ गया। देन आफ्टर दैट योर गिब्सन है, फाइन। एंड देन आपका विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, फाइन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे देयर विल बी 3G जी से आपके 3 आएंगे, ग्रेट सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, फाइन। एंड देन नेक्स्ट इज योर, यहाँ पे आपका समवेयर देयर विल बी अ तनामी डेजर्ट। देखिए आपको ये रफली प्लॉट करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी क्या है चीजें याद रहेंगी। देन आपका तनामी आ गया, देन आफ्टर दैट दिस इज योर सिम्पसन, और इन दोनों के बीच में अगर आप समवेयर यहाँ पे देखेंगे दैट विल बी अ स्टर्टिस टूनी डेजर्ट, ओके। सो आपका निमोनिक्स अगर मैं बोलूं दैट इज द 3G plus ST इज देयर, 3G plus ST इज देयर, 3G आ गया और ST आ गया, फाइन। सो दिस इज हाउ आपने क्या करना है, दिस इज योर ST, फाइन। सो आपके क्या है, दीज आर द इंपॉर्टेंट another mnemonics in order to learn it, fine। आप याद कर सकते हैं कि विक्टोरिया is having 2 son, Victoria is having 2 son, that is your Gibson and Simpson। और उसका तनामी दैट इज उनका जो नाम है, दैट इज योर सैंडी एंड स्पून। दिस इस तरह के आप निमोनिक्स को बिल्ड अप कर सकते हैं, बिकॉज़ जो खुद क्रिएटेड होगा दैट विल बी stored for the longer period of time, okay। so this is your deserts के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, फाइन, आपकी जो लेक्स हैं, लेक्स की अगर बात करूं, जो इंपॉर्टेंट लेक्स है यहाँ पे, दैट इज योर 3 लेक्स है, दैट इज योर लेक एरे इज देयर, fine। then lake disappointment is there, then after that lake woods is there। This is the largest lake of the Australia and also the deepest point of the Australia, lake disappointment। why it is called as a disappointment, because it is dry, and then another is your lakes wood is there, okay। हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि इनकी लोकेशन पर्टिकुलरली कहाँ पे है। so you have to remember ऑस्ट्रेलिया के साथ these 3 lakes are important, okay। तो हमने आपके डेजर्ट्स भी देख लिए, लेक्स भी देख लिए। आफ्टर दैट इफ यू कम अक्रॉस, आपका क्या है, माउंटेन रेंजेस की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट पे आपका इसके माउंटेन रेंज होगी, फाइन, दैट इज योर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और समवेयर हियर देयर विल बी अ हाईएस्ट पीक ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड एज कोशिशको। याद रखना है, दैट इज योर कोशिशको जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में हाईएस्ट पीक है इन ऑस्ट्रेलिया, ओके ओके। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ओके, नेक्स्ट आपका रिवर वाला पार्ट आ जाएगा। रिवर्स में यहाँ पे आपकी 2 रिवर्स है, 2 rivers very important, that is your Murray and Darling is that, okay। don't worry, we will look into the ये लोकेशन कहाँ पे है, okay। तो जो आपकी मेन रिवर है that is your Murray, मेन रिवर, याद रखना है NM से, these are the main river। और ये जो डार्लिंग है इसकी क्या है, this is your tributary of it, these 2 rivers are very important for it, okay। so this is how आपका ऑस्ट्रेलिया में हमने ये सब चीजें देखी, okay okay। so this is, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी this is your disappointment lake is there, this is your lake wood is there, okay, and this is your lake Eyre is there, lake Eyre is there। ये आपकी great dividing range है जो आपकी यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे this is your Mount Kosciuszko, here is the location, Mount Kosciuszko is there, okay okay okay। so far what we have studied, आपका great dividing range जो है
This is extending from Cape York Peninsula. कहाँ पे था? Queensland में. I told you what is peninsula, to the Victoria, and it is continuing beyond the Basque State into Tasmania. What is this strait means? Okay, देखिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, this particular channel is called as a Basque Strait. देखिए स्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है कि जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है एंड दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है. कैसे? यहाँ पे लैंड मास क्या है? दिस इज ऑस्ट्रेलिया. फाइन. यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलरली आई टॉक अबाउट दिस इज योर विक्टोरिया एंड देन यहाँ पे क्या है? तस्मानिया. इन दोनों लैंड मासेस को जो वाटर बॉडी सेपरेट करती है वहां पे हम स्ट्रेट वर्ड यूज करते हैं. और इसका अगर उबर्स फॉर्म में देखूं तो आई कैन से दैट जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर पाए. फाइन. तो यहाँ पे आपका क्या है? दिस इज योर बास्ट स्ट्रेट. फाइन. दिस इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज स्ट्रेट. Okay, so it is an example of the block fault mountain is there. Okay, then हमने Lake Erie देखा. This is the lowest in the region and it is below the sea level about 12 meter. Okay, next is your physiography में हमने देखा 3G that is the Great Sandy Gibson and Victoria Desert. After that हमने Perth देखा which was the capital of the Western Australia. Another important point which can be added to it that is Perth जो है mostly आपने देखा होगा वहाँ पे cricket matches and all that usually वहाँ पे होते हैं. Fine. This is located on the one more information that is situated on the bank of the river Swan River. Swan River पे क्या है? This is located. Okay. And it is also the center of the iron, steel, vehicles, machinery and textiles के लिए भी क्या है? This is important. Okay. Next is your okay, Kalgoorlie and Colgrave. Very important. These are located in the southern region of the Western Australia. Why it is important? Because this is the center of the gold mining in the world. Then Pilbara, again another particular place which is known for the iron ore reserves के लिए काफी ज़्यादा important है. You have to remember these things. Okay? देखिए कोई भी चीज को अगर आपको परमानेंटली स्टोर करना है, द ओनली पेंसिया इज टू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स. जितना आप रिवाइज करेंगे उतनी ही चीजें स्टोर होंगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, बार प्रैक्टिस कीजिए ऑन अ रफ पेज. फाइन. एंड देन फिर से क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए इफ यू आर फॉरगेटिंग एनी पर्टिकुलर थिंग देन रेफर टू द योर एटलस थिंग. ओके, सो दिस इज हाउ. Okay, next is your northern territory में हमने क्या देखा? This is your Tanami Desert is there, then Simpson, that is your ST वाला part, 3G plus ST is there, 2 ST is there. Then हमने McDonald Range देखी and Barclay Tableland is there. Alice Spring की मैं थोड़ी सी लोकेशन बताऊं. Let's see Alice Spring. This is the Alice Spring. This is famous for the petroleum oil reserves also there. Fine. तो आपको ये याद रखना है कौन सा particular place कहाँ पे located है and किस चीज के लिए famous है. Fine. ओके, अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट कर रहे हैं. इफ अगर आप बाकी एक्ट्रेस में भी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को करेंगे देयर विल बी चांसेस ऑफ द मिक्सिंग. फाइन. सो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. ओके, सो दिस इज हाउ. ओके, पिलवारा इज डन. ओके, नेक्स्ट इज योर ओके डार्विन हमने देखा था. दिस इज ऑस्ट्रेलियाज फ्रंट डोर था. नॉर्दर्न टेरिटरी की क्या थी? आपकी कैपिटल थी. फाइन. तो पोर्ट है वहां पे भी आपका क्या एक्सपोर्ट एंड ऑल दैट. फाइन. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज योर Great Victorian Desert. Okay, Lake Erie हमने देखा. This is the deepest point of the Australia. Okay, and largest आपकी क्या थी? Lake also of the Australia. Then Adelaide की अगर बात करूँ तो this is the chief port of the southern coast is there. Again, this is the well-developed agriculture industries. For example, fruit canning and all that. This is and woolen textiles के लिए भी ये एक तरह से क्या है? This is a manufacturing center. Fine. So this is how. Okay. Next is your अगर आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमने ईस्टर्न पार्ट पे देखे थे इफ यू रिमेंबर. फाइन. वो केप यॉर्क पेनिनसुला से लेके बास स्ट्रेट. फाइन. दिस वी हैड ऑलरेडी, यू कैन गो थ्रू इट. फाइन. एंड अनदर दिस इज योर ग्रेट बैरियर रीफ. ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कोरल ब्लीचिंग कांसेप्ट. फाइन. तो अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का जो है दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है समवेयर. ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज योर ग्रेट बैरियर रीफ. दिस इज योर ग्रेट बैरियर रीफ. फाइन. यू नो दैट ये जो आपके कोरल्स हैं दे रिक्वायर्ड अ वेरी कंड्यूसिव एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ climate or temperature of the water body they require. Fine, but because of the climate change and its lot of repercussions के कारण क्या हो रहा है? Coral bleaching is very prominent. Fine. So यहाँ पे क्या है? Australian government is working very hard in order to protect it. But क्या है? Because of the climate change and anthropogenic activities इतनी ज़्यादा robust हो गई है कि yes, this is corals जो है वो bleach हो गए. Fine. तो आपने याद रखना है ये eastern part पे है ऑस्ट्रेलिया के. Okay. Okay. So this is how. ओके, सो यहाँ पे क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट एंड दिस इज रिमेंबर व्हाई. और दूसरी बात ये भी है व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व इट बिकॉज़ दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ एंड दीस आर द इंपॉर्टेंट बाय आपका
environmental indicators also, bio indicators also, क्योंकि देखिए अगर सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन में अगर ये ग्रो है, हेल्दी टर्म है, दैट मीन्स द एनवायरमेंट इज वेरी कंड्यूसिव, बट अगर वहां पे कोरल ब्लीचिंग हो रही है, दैट इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर्स टू अस कि दैट पर्टिकुलर एरिया जो है दैट इज अंडर थ्रेटेड। देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, नेचर जो है एक हार्बिंजर की तरह एक्ट करता है, मींस मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, जो आपको एक मैसेजेस दे रहा है। देखिए नेचर भी आपको क्या है, इट रेडिएट विजडम, बट दिस इज द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट इट इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड what exactly it is trying to say, and because of the under human greeds we keep on exploiting the nature to that extent, it start impacting not only environment but also human being also. So that's why environment ko preserve karna, it's very 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 important. Okay, next is your okay, then हमने दो आपकी रिवर्स देखी थी, मेन से एन वाली, दैट इज मुर्रे एंड डार्लिंग इज देयर, फाइन। और ये जो आपकी डार्लिंग है हमने देखा था, दिस इज ट्रिब्यूटरी, एंड यहाँ पे क्या है, कुछ आपके मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्कीम्स भी हैं, स्टोरी रिवर, चुली फॉल्स एंड शानन इज देयर। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दैट मुर्रे एंड डार्लिंग बेसिन कहाँ पे है, दिस इज द ऑस्ट्रेलिया। ओके, देन आपका न्यू साउथ वेल्स पे हमने देखा था, सिडनी इज देयर। ओके, दिस इज द मेन सेंटर ऑफ द आयरन एंड स्टील, यहाँ पे आपका जिंक और सिल्वर माइंस भी आपकी मिलती हैं। देन आपका न्यू कैसल इज देयर, दिस इज सिचुएटेड एट द साउथ ऑफ सिडनी। रिमेंबर दिस न्यू कैसल इज लोकेटेड एट द साउथ ऑफ द सिडनी। यस, इट इज अ सी पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन आल्सो, फाइन, दिस इज इंडस्ट्रियल टाउन आल्सो। ओके, देन क्वींसलैंड में हमने देखा था इसकी कैपिटल क्या थी, ब्रिस्बेन इज देयर। अगेन आपका मशीनरी और लोकोमोटिव्स का पार्ट जो है यहाँ पे क्या है, और आपका जो है दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर आल्सो। ओके, then comes to your Victoria, this is capital is your Melbourne, this is the country's second largest city is there. Okay, then Canberra हमने देखा था, this is the administrative capital of the this is the administrative city and this is the capital of the Australia, whole country की क्या है, that is the Canberra. Okay, then Tasmania में हमने देखा, Tasmania की capital क्या थी, this is your Hobart is the capital of it. Again this is the processing center also, major बहुत सी आपकी क्या है industries located होंगी. Okay, next comes to your New Zealand part. देखिए न्यूजीलैंड के लिए before we get into it, fine, how the way इसको कैसे हम लर्न कर सकते हैं, कैसे ये चीज कर सकते हैं, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिए कैसे करना है। जस्ट रफली प्लॉट कीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। न्यूजीलैंड, दिस इज योर नॉर्दर्न आइलैंड इज देयर, दिस इज योर सदर्न आइलैंड। ओके, रफली प्लॉट कीजिए, फाइन, नॉर्दर्न आइलैंड, सदर्न आइलैंड। देन यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज अ वाटर चैनल इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज अ कुक स्ट्रेट। यहाँ पे कुक स्ट्रेट है, यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी समवेयर हियर देयर विल बी अ माउंट कुक। सो ऑलवेज रिमेंबर माउंट कुक का जो कोरिलेशन है वो सदर्न आइलैंड से है, न्यूजीलैंड के। ओके, दिस इज हाउ। यहाँ पे आप देखेंगे देयर विल बी अ वन सिटी दैट इज ऑकलैंड इज देयर। समटाइम्स सिटीज का भी नॉर्थ टू साउथ आपका कैटेगराइजेशन आ जाता है। यू मस्ट रिमेंबर दी कौन सी सिटी पर्टिकुलर जो बहुत फेमस है, यू शुड बी फेमिलियर विद दैट। Okay, then यहाँ पे somewhere there will be a Lake Taupo is there, Taupo, Taupo is there. Okay, Lake Taupo is there. यहाँ पे आपका क्या है, that is a Wellington is there. Okay, और जो Southern Island में है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपके एक particular island है, that is your Stewart Island is there. और इनको जो water channel separate कर रहा है, that is called as a Foveaux Strait is there. Okay, Foveaux Strait is there. और मोर थिंग, न्यूजीलैंड में आपके क्या है, जो सदर्न आइलैंड है, यहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर ग्रासलैंड्स है, दे आर कॉल्ड एज अ कैंटरबरी आइलैंड, कैंटरबरी ग्रासलैंड्स। और यहाँ पे ग्रासलैंड्स है, यहाँ पे आपकी एक लोकल विंड चलती है, दैट इज योर नॉर्थ वेस्टर। सो रिमेंबर कैंटरबरी इज अ ग्रासलैंड फाउंड इन द न्यूजीलैंड, इन विच पर्टिकुलर पार्ट, सदर्न आइलैंड में। और वहां पे कौन सी पर्टिकुलर विंड चलती है, दैट इज योर विच वन, दैट इज योर दिस northwest is there. Okay, so New Zealand ka, let's do the compilation of it. New Zealand, okay, this is New Zealand. Okay, New Zealand में we have seen the highest peak जो है Mount Cook थी, फाइन, राइट डाउन कहाँ पे है आपकी Mount Cook, which northern और southern. Okay, then आपके Canterbury Plains we have seen, this is extensive plains and this is an example of the Piedmont alluvial plains, very important, remember this. Okay, then Lake Taupo, this is the New Zealand's largest lake is there. Okay, और यहाँ पे क्या है, दिस इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द सेंट्रल वोल्केनिक प्लेटो ऑफ द नॉर्दर्न आइलैंड. ओके, दिस इज हाउ वेलिंगटन हमने देखा, दिस इज एट द सदर्न टिप ऑफ द नॉर्थ आइलैंड, कंट्रीज कैपिटल, एंड आल्सो दिस इज द सदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो द सदर्न मोस्ट, सबसे सदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है वर्ल्ड की। एंड यस,
ये आपकी क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑन द कुक स्ट्रेट ऑल्सो. ऑकलैंड की अगर बात करें, दिस इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ नॉर्थ आइलैंड. ओके, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस भी है अर्बन सेंटर. ओके, क्राइस्ट चर्च की अगर बात करें, दिस इज द इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द साउथ आइलैंड इज देयर. ओके, सो दिस इज अबाउट योर न्यूजीलैंड. ओके, सो दिस इज हाउ, आपको यही चीज क्या है जो भी हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की है, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम. यू विल बी एबल टू comprehend it. Fine, learning हो जाएगी, but you have to practice it again and again. Okay, thank you so much.